السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ نئے سال کو ایک غریب آدمی کس طرح دیکھتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا فیکا۔ لو جی، غریب آدمی کی بات کرے گا فیکا۔ اونا دعا نال بھی گل کر لو، اونا تے کیڑے شپ چل دے نے۔ او ایڈر والا سکولاں وچ مداریاں کردا ہے، پروفیسر میکو ٹول۔ اور ایڈر والا جڑا نارکڑی دے نکڑ تے کھلوتا ہوندا پھلاں والے 4 گلاس لے کے۔ پہلے تو تم کہہ رہے کہ تمہارے محلے کا کریانہ فروش ہے تو کریانہ فروشی، وہ گلاسوں والی تو میں نے جگت کی ہے۔ جگت بھی کرتا ہے۔ آپ جگت کہتے ہو کہ یہ دونوں ہی کر دیتی ہیں۔ انہوں نے مجھے جب پچھلی دفعہ جگتیں کی تھی نا، تو محلے میں ساڑیوں نے مجھے بڑا تنگ کیا تھا۔ جب تم نے وہ لنڈے کی ریڑھی لگائی تھی۔ تو یہ والا بھی کریانے والا بھی روز ہی میرے ساتھ لڑتا ہے۔ کیوں؟ ابھی نواں سال چڑھ گیا نا تو 6 دن ہو گئے روز پھڈا۔ ہم نے اس کو بات پہ ہم اس کو دیتے ہیں 2000 روپیہ مہینے کا فکس۔ ہاں، ہم کہتے ہیں ہماری جو میری اور ابے کی تنخواہ میں سے ہم 2000 اس کو دے دیتے ہیں۔ اور میری ہیلپ کرتے ہو، جو چیز لیتے ہو اس کے پیسے دیتے ہو۔ دشن لگائے زیادہ ٹر نہ کر شوکا ملے چینو پلاسٹک دا بتخا کہنے دشن پھر ہم اس کو 2000 روپیہ مہینہ دے دیتے ہیں نا، تو ہم نے اس کو کہا تھا کہ یہ پیسے بڑھا لیتا ہے۔ کجی کہندہ 2700 بنیا، کجی کہندہ 2400 بن گیا۔ 2000 فکس تو نہیں ہو سکتا نا فیکے یار۔ جی سر۔ ہاں، تو پچھلی دفعہ ہماری خالہ آئی ہوئی تھی حیدرآباد سے۔ انہیں پیسے کہیں جو سکی بگر خانی دکھانا تم۔ نمک مرچیں ہلدی بھی سے لیتی ہے۔ جی اچھا۔ ہاں، پچھلے مہینے صرف 3 کلو چاول لیے تھے ہم نے، تو آگے سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے اس کو کیا بھی تھی کہ جب اب نواں سال چڑھے گا نا تو میں تم کو تمہارے پیسے دے دوں گا۔ نوے سال سے تو شوگر مل لا لینی سی۔ مزہ آ رہا ہے۔ اگو کہتا بتاؤ نا نئے سال پہ کیوں وعدہ کیا تھا؟ حاجی صاحب جو ہے نا ہماری فیکٹری والے مالک، وہ کہتے تھے کہ اب نواں سال آئے گا نا جب، تو پھر آپ سب کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ اچھا، تو اس لیے میں نے اس کو کہا تھا کہ تمہیں نواں سال چڑھے گا تو دے دوں گا، تو پر تنخواہ ہی نہیں بڑی۔ ابا بھی کہہ رہا جی کہندہ کہ غریب دا سال بدل جاندہ ہے، حال نہیں بدل جاندہ۔ او بھائی میں نے تیرا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، حال نہیں بدلا۔ پچھلے پیسے تو چھوڑو، یہ 2020 روپے تو دو۔ میں تیرے کو لو ٹھیکہ لیا ہویا ہے، میں تیرے کو لو سودا لیا ہویا ہے۔ ابھی تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ تنخواہ نہیں بڑی۔ تو اس کی جو 2020 ہے وہ تو دو نا۔ 2020 روپے اس کے دینے تھے، تے ساڑا ملا کہندہ ہے کہ 2016 تے گیا، باقی رہ گا 4 روپے۔ پھر میں ایدے کو لے جا کے دکان تے پوچھیا، میں کہا چاچا 2017 آ گیا؟ کہندہ ہاں اللہ دا شکر آ گیا۔ میں کہہ لو پھر باقی 3 روپے۔ تے پیپے تو اٹھ کے منو مارن لگ پیا۔ لو ابھی یہ چل رہا ہے۔ منو ماریا ویسی تو کہندہ جا دوڑ جا۔ میں کہا شام تے سدھا کارا اپنا، میں تینوں کنے پیسے دیتے نے ہون؟ کہندہ 3 روپے۔ تے میں کہا تو میرے کو لو کنے لئے نے؟ کہندہ 3 روپے۔ میں کہا 3 تے 3 ہو گئے 6، تے ہون 6 روپے دا کریم ڈول دے۔ واہ تے کریم رول لے کے تے انہوں کاغذ تے اینجنج کرنے ہیں، میں کہا ہی کرنے ہیں، کہندہ دی میک کرنے ہیں۔ وہ کریم ساری کٹ کے تے خالی کھا گیا کریم رول۔ وہ کریم وکری چمچی نہ کھانے ہیں۔ وہ اس طرح تیرا کیتا چھی۔
ਬਾਬੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੀਮ ਲੈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਰੀਮ ਢੋਲ ਲਵੋ ਨਾ ਤੇ ਚਮਚੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕਰੀਮ ਅੰਦਰ ਜੰਮ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ पता नहीं किदों किदों दे करीम डोल सानू खुआ छड़े अच्छा बहाने ना लगाओ, उसके पैसे दो। किदे उसके जो देने हैं पैसे ओदा ते मैं दे छड़िया 217 हद हो गई यार। बल्कि मैं 6 रुपये होने नु दिते ने ओदे मेनू करीम डोल लेके दियो। हद हो गई यार। एक 6 रुपये दा ते बाबा देंदा ताजा ते दे जम्मी करीम वाले 2 करीम डोल लेके दियो। खराब करीम डोल बेचदा मेनू 2 करीम डोल नहीं तो फिर मैं बाजी आशा मुमताज नु कह के छापा पुआ दिया। वाह वाह है चला, और आशा मुमताज का भी पता है इसको। बोलो अखबार च वो अभी पढ़ के बता रहे होते हैं कि आशा मुमताज छापे मार रही है। वो तो नहीं है यार। वो बोली अब कौन है? अब वो पंजाब फूड अथॉरिटी का नूरुल अमीन मेंगल है। फोन में लाओ उसको। क्या कहना है? उसको इसका नाम बताओ जरा। उसको कहो मेरे यार नु करीम डोल नहीं दे रहा छापा मार दो। तो कितने चला को यार? तो फिर 6 रुपये इसने लिए नहीं है। खुद कह रहा है जब तनहा भी नहीं मुझाड़े हाजी साहब तो ये भी रोज लड़नी आ जाता है। वो हाजी साहब तेरी तरह क्यों बताउन, कपड़ा सारा चाइना दा आउंदे। ते तेरा की ख्याल है असि लूमा ते सेवियां वटन दे होया 700 लूमा ने हाजी साहब दिया तो 700 लूमा उन्हां दियां ना, तू ते साफ ही करना लूमा। ते तेनू फिर शर्म नहीं आती मैं 700 लूम साफ कर लेना वा, तू अपना कला मुंह नहीं साफ करदा। हर वेले पजामा फड़ी रखना है, वो 700 लूम चो एक लूम ते नाला बना के ते अपने हाथ ते फ्री कर। मैं पजामा नहीं फाड़दा, मैं अपने आप नू घुट के फाड़ लेना नहीं तो फिर मैं दौड़ जाना वा। और तू की फड़ना अपने आप नु, मेरे पैसे दे, मैं आज तेनू फड़ लेना है। फड़ के दहा फिर तेनू फिर पता लगे 2 नंबर चीजा बेच दई। साडे मलक होरी के बड़े पुत्तर बहु भी दड़ी ते कोला सिगरेट नहीं लेंदे तो कहंदे ने सी शहरों ले आने 2 नंबर सिगरेट बेचदा। सही गल है, 2 नंबर चीजें बेचता है ये। एक दफा महल्ले च बच्ची गई हुई सी, मैं कहा जरा को वाली बोतल दे, मैं डांस करके उल्टबाजी ला के ते जमीन ते पैर मारा बच्ची आ जावे। तेने मैनू बोतल दी है, पैसे भी मेरे को ले मैं डांस भी किया साड़ा। फिर मैंने पी के बोतल तो कलाबाजी मार के नीचे पैर मारे, बच्ची नहीं आई, मेरा गिट्टा निकल गया जी। 2 नंबर चीजें बेचता है ये इसकी बोतल से बिजली भी नहीं आती, 2 नंबर चीजें बेचता है ये। करो फोन। क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं? उसके पैसे देने हैं, पैसे दो, मामला करो उसके साथ। तो अब नहीं तनहा बड़ी 9 साल की तो फिर किस तरह लाइए? तो बात करो उसके साथ। ठीक है, जेड़े पैसे देने किसी दे, दे के जान छुड़ दिया तो लड़के ला देने सी दोवें। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, तू 2000 दे, 20 मैं दे देना। एक ले आए डल के देने ने तो फिर सारे डलो उधड़ो जुड़ो जो भी तुम दे दो। 1000 बाजी दे देवे, 1000 पाँच जुनैद दे देवे ते तू ते दुआ मैं दे दिया। वो केड़े पैसे दसी दिते ना, तू तो सिर्फ दुआ ही दिती है। वाड़े वाह 20 रुपये पाके ते की पार्टनर बने आया। गरीब बंदा जो दुआ देन जो गई रह गया है। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार पा जुनैद हमारे एक म्यूजिशियन थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, भाग साहब अकॉर्डियन प्लेयर थे वो। पूरे बड़े सगीर में उनका बड़ा नाम था भाग साहब का। जुगत भी वो बहुत मये की करते थे, मैं पहले भी 1-2 दफा बता चुका हूँ। उनको हो गई शुगर, अच्छा, और फिर शुगर हो गई अरूज पे, आर्टिस्ट आदमी
سونا اٹھنا بھی لیٹ سویری تو صحت خراب ہو گئی, بہت زیادہ شوگر ہو گئی. تو کسی دوست نے پوچھا, شوگر سے اکے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے, تو دوست نے پوچھ لیا باغ صاحب کیا حال ہے جناب؟ کہتے ہیں یار بس اللہ دی لکھ لکھ شوگر ہے. مگر اب میں سوچتا ہوں کہ اب تو سب کوئی لکھ لکھ شوگر ہوئی یار, اتنی زیادہ شوگر. جس بندے کی طرف دھیان مارے جن کو شوگر ہے وہ کنٹرول میں ہی نہیں آ رہی. بے پناہ چینی کا استعمال ہم کرتے جا رہے ہیں, ہٹتے نہیں. یہ عجیب بات ہے, چینی کے استعمال میں اضافے کی وجہ سے شوگر نہیں بڑھ رہی, ہمارے بیٹھ جانے کی وجہ سے بڑھ گئی. میرا خیال ہے وراثتی ہے یا یہ جو ٹینشن ڈپریشن راستی بھی ہے, مگر بیٹھ بھی گئے ہیں نا, پیدل چلنا بھی چھوڑ دیا. ہاں, ہمارا جو لائف سٹائل بن گیا اس کی وجہ سے ڈائبٹیز میں اضافہ ہو رہا ہے. ادروائز تم یہ سن کے حیران رہ جاؤ گے کہ پچھلے 15 برسوں سے پاکستان میں جو چینی کی فیکس کھپت ہے وہ کم و بیش وہی ہے. 25 کلو ہم ایک عام شہری سالانہ چینی استعمال کرتا. نہیں تو پھر یہ کس لیے یہ کسان جی جو آئے ہوئے ہیں دوست ہمارے, یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ بڑی یہ آتی ہو گئی ہے. شوگر ملوں والے کبھی کبھی ان کی آواز آتی ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی یہ آتی ہو گئی ہے. کبھی کبھی حکومت کہتی ہے کہ یہ دونوں بڑی یہ آتی کر رہے ہیں. تو اگر کھپت بھی نہیں ود رہی, ادھر کی ادھر کھڑی ہے, تو ان کے ساتھ کیا یہ آتی ہو گئی ہے جی؟ گنے کے کاشتکاروں کے جو مسائل ہیں بڑے سنگین ہیں. جی سائیں ساڈی میرے منہ دی گال تساں کھسی ہے. نہیں اتنے آپ کے مسائل بن گئے ہوئے ہیں اگر, تو یہ وہ پرانا کام کیوں نہیں شروع کرتے؟ اب وہ گڑ بنا کے کوئی نہیں بیچتا, کہیں کہیں گڑ نظر آتا ہے. پہلے چینی کی جگہ گڑ بڑا استعمال ہوتا تھا, شکر بڑی استعمال ہوتی. سائیں فیکٹری والے نے آکھے کہ بند کر دیو گڑ بناونا, اساں چینی بناونی ہے. ہاں, یہ قانون نہیں ہے ویسے. یہ بھی بعض علاقوں میں شوگر ملز کی یہ بدماشی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ قانونی طور پہ پابندی ہے کہ جس ڈسٹرکٹ میں شوگر ملز ہوگی وہاں پہ آپ گنے سے گڑ نہیں بنا سکتے. اور صحیح دیکھو جڑن تک گڑ رہے کوئی بیماری نہ آئی, جڑن دی چینی آئی ہے بال تو پھر کے بڑے تک شوگر تھی گئی ہے. اور نہیں بابا, یہ بات یہ اصل میں سیدھی کہ ہمارے ہاں دیہی علاقوں میں بھی اب گڑ کی جو کھپت ہے, استعمال ہے, اس میں بھی ڈراسٹکلی کمی واقع ہوئی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ شہروں میں بھی اکثر گھروں میں گڑ کا استعمال ہوتا تھا, اب گڑ میرا خیال خال خال کہیں نظر آتا ہے. اور گنے کا استعمال بھی صرف رو کی ریڑیوں پہ نظر آئے گا آپ کو, یا کہیں گنڈیریاں نظر آئیں گی. ہاں جی ہاں جی, اب تو گوڑ آپ کو صرف حکے کی ٹوپی میں نظر آتا ہے, یا پھر گوڑ آپ کو نظر آتا ہے ترخان کے پاس. وہ جب کام کر کے ہٹتا ہے نا تو وہ کہتا ہے جی بورا جاتا ہے میرے اندر, میں اوپر سے پھر گوڑ کھاتا ہوں. گوڑ ایسی چیز ہے جو لکڑ کو پتھر کو ہضم کرتی ہے. ہضم بھی کر لیتی ہے, اور حکماء یہ کہتے ہیں کہ آنتوں کی صفائی بھی گڑ سے ہوتی ہے. جو پولٹری میں 1-2 دن کے چوزے ہوتے ہیں ان کو بھی گڑ کا سیرپ پلاتے ہیں تاکہ ایک بار وہ فلش آؤٹ ہو جائے جتنی اس میں گندگی ہے. اچھا, پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم اصل میں گڑ کو صحیح طرح سمجھ نہیں پائے کہ گڑ کی کھپت بھی کیوں کم ہو گئی ہے. اچھا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمارے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ گڑ بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے, کھایا جاتا ہے. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے دیہی علاقوں میں بھی گڑ صرف پاکستان میں زیادہ جو استعمال ہے گڑ کا وہ کے پی میں اب زیادہ. جی, اور اگر آپ اعداد و شمار دیکھو تو پاکستان دنیا میں گنا پیدا کرنے والا 5واں بڑا ملک ہے. 5واں بڑا ملک ہے دنیا میں. نمبر 1 جو ہے برازیل ہے, دوسرے نمبر پر ہندوستان, اور تیسرے نمبر پر چائنا ہے. نہیں تو ہمارے ہاں گڑ کا استعمال کیوں کم ہو گیا ہے؟ اور باسی لوکاں نے سن لیا گڑ نالوں عشق میٹھا, اور لوکی عشق چ پہ گئے ہوں. نہیں ویسے کو عشق میں کبھی بادام اور اخروٹ ڈال کے دیکھو. عشق میں اگر بادام بدوم ڈالنے بیٹھ جائے نا تو اتنی دیر میں اوپر سے کوئی بزرگ آ جاتا ہے, پھر وہ بودیوں سے پکڑ کے تو عاشق کو لمحہ پا لیتا اور مار مار کے منہ پہ چپیڑے اور کسون بتی کے بتی بادام توڑ دیتا ہے. بتا میں تمہیں یہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو 70 لاکھ ٹن گنا پیدا ہوتا ہے, ہمارے ہاں جو وطن عزیز میں 90 شوگر ملز ہیں وہ اس سے 50 لاکھ ٹن چینی تیار کر رہی ہیں. تو باقی بچتا کتنا ہے؟ 50 لاکھ ٹن چینی, اور یہ سالانہ, اور یہ آلموسٹ ہماری اپنی کھپت ہی ہے. وطن عزیز میں اتنی ہو رہی ہے, ہم مشکل سے میرا خیال ہے کوئی 5-6 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. باقی ساری چینی ہم خود کھا رہے ہیں. ہاں جی, نہیں یار ریسرچ کرواؤ, جتنی گندی دکانیں ہیں یہاں پہ ادھی چینی تو مکھیاں کھا جاتی ہیں. ہاں ایویں تو نہیں, ہمارے ملک میں مکھیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اب تو مکھیاں ساتھ والے ملکوں کی مکھیوں کو بھی فون شون کرتی ہیں, اتراج وہ ساتھ اتنے بڑی چینی پئی تے سونیاں بھی چینی تے اٹھنیاں بھی چینی تے. یہ کیا کر رہے ہو؟
ਮੱਖੀ ਪਾਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ के बैठी होगी हाँ हाँ बाकी इधर मक्खियों की मौज लगी हुई है लोगों को खाने के लिए चीनी मिल नहीं रही इतनी महंगी हो गई हुई है मैं तो ये भी कई दफा भाई जुनैद सोचता हूँ कि लोग क्यों महंगी चीनी खरीदते हैं गुड़ सस्ता होता था आराम से सारे लोग खरीद लेते थे गुड़ सस्ता होता था ना अब नहीं है अच्छा हम शहर वालों को तो ये भी नहीं पता कि गुड़ चीनी से महंगा हो चुका हुआ है की मतलब आज तुम्हें चीनी 65 रुपए किलो मिल जाती है गुड़ का रेट क्या है 80 से 85 रुपए एक वक्त था कि गुड़ चीनी से सस्ता होता था लेकिन अब नहीं है अब गुड़ महंगा हाँ, गुड़ बनाओ महंगा यार चीनी है नदी गन्ने दे यार और चीनी बनवा के तेन भेज दिया तुम्हें गुड़ के बारे में सबसे दिलचस्प बात बताऊं ये गुड़ हमारी इजाद है दुनिया में अच्छा हाँ ये गुड़ बड़े सगीर में शुरू हुआ था ये 8वीं सदी ईस्वी में अच्छा। हमने ये गुड़ बनाना शुरू किया था वरना गन्ने की काश्त तो 6000 साल कबल मसीह ये तारीख इंसानी बताती है कि ये न्यू गिनी में सबसे पहले गन्ना पैदा हुआ लेकिन उस वक्त लोगों को ये नहीं पता था कि गन्ने से गुड़ या चीनी भी बनेगी वो सिर्फ गन्ना खाने के काम आता था गन्ना चूसते थे लेकिन ये फिर बड़े सगीर में 8वीं सदी से शुरू हुआ कि ना और फिर अरब ताजर यहाँ से गुड़ बना के लेके जाया करते थे दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों में तो ये बड़े सगीर ने मिठास फैलाई है पूरी दुनिया में जी भाई यानी ये शुगर फैलाने के जिम्मेदार भी हम ही हैं जी ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਜੋ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਓ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਓ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਓ अब बिल्कुल ठीक है फिर जो सारा जिस्म मिठा हो जाता है फिर डॉक्टर को जाके कह रहे होते मैंने दवाई दियो मेरा मिठा बद गया मैनू पानी पियाओ मेरा मिठा घट गया नाज़रीन हमें लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन पनामा केस की सुप्रीम कोर्ट में दोबारा समाअत के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शेख रशीद जुनैद साहब बात बहुत आगे निकल गई हुई है आप अभी तक पनामा लीग में रुके हुए हैं मेरा ख्याल है कि बात तो अब आगे चलेगी ये जो नया साल चढ़ा है जुनैद साहब आप याद रखिएगा ये बिल्कुल ऐसे ही चढ़ा है जैसे इस्लामाबाद लॉकडाउन वाले दिन शेख रशीद वैगन पे चढ़ा था पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर तहलका मच गया मुझे याद है अच्छी तरह उस दिन ओबामा की प्यूटन के साथ 2 नवंबर को मीटिंग थी जब उसने टीवी ऑन किया तो उसने प्यूटन को सॉरी कह दिया था अच्छा उसने कहा बस भाई शेख रशीद देखूं अब या तुम्हारे साथ गुफ्तगू करूं और यकीन कीजिए कि ये साल जो है ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा ये हुकूमत के ऐवानों में तहलका मचा देगा लेकिन ये बात तो शेख साहब आप पहले भी कहते रहे जुनैद साहब एनफ इज एनफ बहुत हो गया शेख रशीद गरीबों का लीडर है और गरीब का दुख देखा नहीं जाता मुझसे मैंने तो मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे भी इकट्ठे कर लिए हैं मदरसे वालों को भी कहा है कि हर रोज बच्चे मेरे पास 1 घंटा भेजा करें अच्छा हाँ जी मैं इस हुकूमत के खिलाफ दुआ कराऊंगा रोज बल्कि बच्चों को भी छोड़े मैंने तो 25-30 खुसरों को भी बुक कर लिए वो क्यों क्योंकि खुसरे की बददुआ सुना है बहुत बुरी होती है और वैसे भी आप मीडिया पे देखते हैं कि आजकल मर्दों और औरतों से ज्यादा खुसरों के हुकूक पे बात हो रही है तो मैंने बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत खुसरों को बुक किया है ताकि एक तो उनकी बददुआ जो है वो कारआमद साबित होगी और दूसरा उन पे मीडिया के ऊपर भी डिस्कस ज्यादा होगा बल्कि शेख साहब वो जो ख्वाजा सराय एसोसिएशन के सदर है अलमास बोबी उनका ताल्लुक भी आपके हल्के रावलपिंडी से है वो उसे छोड़ें जुनैद साहब वो तो करोड़पति आदमी है बहन हमारी मैंने गरीब खुसरे इकट्ठे किए हैं जुनैद साहब क्योंकि आपको ये आज टेक्निकली बता दूं कि गरीब खुसरा जो है ना वो पेट भरने के लिए ताली बजाता है इसलिए उसकी ताली में बड़ी जान होती है अमीर खुसरा तो शौकिया ताली बजाता है ये गरीब खुसरा ही है जो ताली के साथ हाय भी करता है और ये आप देख लीजिएगा कि इन हुक्मरानों पे खुसरों की हाय ही पड़नी है क्या रिसर्च है शेख साहब की खुसरों पर मैं देखें सियासत सारी जिंदगी की है जुनैद साहब मैं स्टूडेंट लाइफ से सियासत में हूँ मैं को सोने का चम्मच लेके नहीं पैदा हुआ और मैं इनकी तरह कोई पैसे के जोर से नहीं सियासत में घुसा हुआ आप देखिएगा वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना कि वक्त चिड़िया दे हथों बाज मरवा देता है
मैं इन खुसरों के हाथों हुकूमत गिरा दूंगा और हुकूमत सादी नहीं गिरेगी, ये खुसरे गिरी हुई हुकूमत पे नाचेंगे भी। क्या आप लोग मजाक समझ रहे हैं? मैं आपको सियासत का बड़ा गहरा फलसफा बता रहा हूँ। अच्छा, गिरी हुई हुकूमत पे जब खुसरे नाचते हैं ना जी, तो आप 20,000 रुपया भी टिकट रख दें तो वो बिकती है। इसका सियासी फलसफे से क्या ताल्लुक है? जुनैद साहब, सुकरात ने इतनी बड़ी बात ऐसी नहीं कह दी थी। क्या? सुकरात ने कहा था कि गिरी हुई बेल और गिरी हुई हुकूमत पे खुसरा बहुत जोर से नाचता है। शेख साहब सुकरात ने पिंडी का सी मेरे हलके का था ये। पिछले इलेक्शनों में आपने मेरे बैनर नहीं पढ़े? फरजंदे रावलपिंडी को वोट दें, मनजानिब सुकरात बुकरात बरादरान। अच्छा, आपके हल्के के थे ये सुकरात? यार, आप हलके की बात करते हैं, मेरी गली के थे दोनों। हाँ हाँ, सुकरात की मेरी गली की नुक्कड़ पे मोबाइल ठीक करने की दुकान थी, और बुकरात तो बिल्कुल हवेली के सामने ही लेडीज बुरके बेचता था। बड़ा बिजनेस चलता था दोनों का। मैंने तो सुना था कि सुकरात और बुकरात दोनों फुकरात ही थे। देखें, आप एक संजीदा मौजू को ट्विस्ट करके पता नहीं कहां ले गए हैं। बात हो रही थी खुसरों की। हजूर, बात हो रही थी पनामा लीक्स की। हाँ जुनैद साहब, पनामा लीक्स का भी रिजल्ट सामने नजर आना शुरू हो गया है। इंशाल्लाह ये आवाम सारी देखेगी कि पनामा लीक्स का क्या नतीजा निकलता है। कल कोर्ट ने ये मेहरबानी तो फरमाई है कि ऐलान किया है इसकी समाअत अब रोजाना हुआ करे। मैं तो कोर्ट से अपील करूंगा कि इसकी रोजाना डबल शिफ्ट पे समाअत करें। ये क्या कह रहे हैं शेख साहब? देखें, आवाम चाहती है कि इस साल में पनामा लीक्स का कोई ना कोई फैसला सामने आना चाहिए। और साल तो बहुत छोटा होता है, पलक झपकने में गुजर जाता है। बल्कि मैं तो कोर्ट से ये भी दरखास्त करूंगा कि साल के महीने भी 24 किए जाएं। और 12 महीने में पशीन गोइयां 2-3 ही होती हैं सारी। 24 महीने होंगे, एक तो ये हुकूमत का टेन्योर छोटा हो जाएगा। शेख साहब, इस तरह हुकूमत का टर्नओवर तो और लंबा हो जाएगा। 2 सालों में 24 महीनों की बजाय 48 महीने हो जाएंगे। चलो, मेरी पशीन गोइयों का साल 24 महीने का करें, नून लीग का 3 महीने का कर दे। अदालती फैसले आपकी ख्वाहिशों पर तो नहीं हो सकते ना? चलो, मैं तो दुआ से बचे बाए। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, बदतहजीबियों में एक जॉइंट फैमिली सिस्टम से खास तौर पर रिलेटेड बदतहजीबी है कि मुख्तलिफ जो अफराद खाना है उनके अगर ड्यूटी आवर्स मुख्तलिफ हैं, किसी की अगर नाइट ड्यूटी है, किसी की मॉर्निंग शिफ्ट है, या थोड़ा बहुत फर्क है, तो अगर एक जो कुंबे का फर्द है वो सोया हुआ और दूसरे ने जाने की तैयारी करनी है, तो उस वक्त जो शोर है, वैसे तो आम तौर पे भी अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम ना भी हो तो भी मेरा मतलब अखलाकियात का तकाजा ये है कि दूसरे की नींद का ख्याल रखा जाए। लेकिन खास तौर पे जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब ड्यूटी आवर्स फर्क होते हैं मुख्तलिफ अरकान के, फिर मेरा ख्याल बहुत ज्यादा एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए, दूसरे की नींद का ख्याल करना चाहिए। जान के कोई बर्तन अपने हाथ से नीचे गिरा देना, फिर चाचा बेचारा आंखें मलता हुआ घबरा के उठ के बाहर आ जाए, खैर की होया है, फिर कहते नहीं समो समो पतीली है थोड़े को पैसे, अब क्या समो, अब तो वो बेचारा बाहर ही आ गया। ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा मेरा ख्याल है ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में खवातीन जो है ना वो भी एक दूसरे के लिए तकलीफ पैदा कर देती हैं। वो मतलब अगर किसी और खतून के आज अपना कपड़े धोने की बारी है तो अपने वाले कपड़े किधरे लुका छोड़ती हैं कि आपे दी बारी आएगी तो ये को धोआवांगी। बर्तन धोने के लिए भी 2-2 दिन बर्तन पड़े रहते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम का तो उसकी तो खूबसूरती ये है कि मिलजुल के काम करना। अगर ये नहीं होना चाहिए कि ये सोमवार मंगल बुध शो नहीं होंगे तो ओदे च भांडे धोएगा, ये गलत बात है। उसको बेचारे को अपने अखबार खबूर भी देखनी होती है। अच्छा, एक और जो जोड़ दो इसको बस। अच्छा यार, मेरी बात सुनो, मुझे बदतहजीबियां तो डिस्कस करनी नहीं थी, मैं तो डिस्कस करना चाह रहा था कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका ने अभी इन्वॉल्वमेंट शो करनी, ये भी बदतहजीबी है कि आप पहले को और टॉपिक छेड़ के तो फिर उसको परतालेंगे, बदतहजीबी। ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के लिए बुजुर्गों ने कहा हुआ ना कि सांझी मज नूं पट्ठे कोई नहीं पाउंदा। हाय हाय हाय, बहुत अच्छी बात है।
अडीकते रहते हैं कि वो पा देगा वो पा देगा नहीं उड़ीकते नहीं रहते, मज उड़ीकती रहती है, वो पा देगा वो पा देगा। यार मज किस तरह इंतजार करती रहती है? मज कौन सा एजी ऑफिस में लगी हुई है? शाबाश, मज ने पीसी से खाना लगवाया हुआ है, उसने बंदों की तरफ ही देखना है ना। वैसे मज अगर टेक अवे करवाए तो सिर्फ शवारमे की आवाज लगा सकती है, शवारमा शवारमा शवारमा। यार ये ज़हन में रखो कि हम बदतहजीबियां डिस्कस कर रहे हैं। सॉरी मज बेटे। अच्छा, ये जो डिस्कस हो रहा है जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात, तहजीबियां, इस हवाले से कि ये भी देखने में आता है कि कोई बड़ा अगर बुजुर्ग यानी ताया अगर किसी भतीजे को चाट रहा है, उसे डांट डपट कर रहा है, तो चाचे को नहीं चाहिए कि आके कहे कि आप क्यों डांट रहे हैं। दादा अबू कहते तो वो अलग बात। दादा का राइट बनता है। हाँ जी हाँ जी। और इसी तरह अगर बड़ा भाई छोटे भाई को डांट रहा है तो उससे छोटे को बीच में नहीं आना चाहिए। अब बिल्कुल ठीक है, और इस बात तहजीबी का तुम तो खास तौर पे ख्याल किया करो, क्योंकि तुम्हारे घर में तो सबसे छोटे तुम ही होगे। वो उम्र की बात कर रहे हैं। सॉरी भाई। अच्छा सर, एक बात तहजीबी का जिक्र मैं भी करना चाहती हूँ, जो अक्सर घरों में देखने में आया है कि जब भी किसी से फोक, नाइफ या कैंची मांगी जाती है तो बजाय इसको कि उल्टी साइड से पकड़ाया जाए, हमेशा इसे सीधी साइड से पकड़ाया जाए। वाकई, और ये खतरनाक भी है। नहीं, खतरनाक तो खैर अपनी तरफ करके भी पकड़ाई जाए तो है। नहीं दिल करे अगले को गुस्सा चढ़ाओ। खास तौर पे बेगम से जब भी लो तो उसको पहले यकीनी बनाओ कि इसका मुंह अपनी तरफ करो, याद रखना। बिल्कुल ठीक है, बेगम की तरफ करो। भाई बेगम की तरफ नहीं करो, कम से कम मेरी तरफ ना करो यार, सीधी बात है। तुम उसको दूसरा रुख क्यों दे रहे हो? चलो जी, आप ही भुगतोगे हमें क्या? फौजी शौहर छुरी पे गिरे या छुरी शौहर पे गिरे, चढ़ता शौहर ही है। अच्छा जी, शोहर भावे लाइनों वाला हो, भावे प्लेन हो, भावे मिठा हो, भावे फिक्का हो। लाइनों वाला प्लेन वाला ठीक है, दुआ करो फिक्र हो रही है। यार खुदा, इस चीज को किस चीज से मिला रहे हैं यार? बाजारों से आवाजें हैं कि शौहर 35 रुपए किलो, शौहर 35 रुपए। यार खरबूजे की बात कर रहे हैं हम। 35 रुपए किलो, फिक्का भी 35 रुपए किलो। खुदा का खौफ करो। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अक्सर ये वावेला किया है, आय हाय हाय हाय, वावेला मुझे ऐसे लगता है कोई खाने वाली चीज है। तो गरम गरम वावेले लेके आओ। हाय हाय हाय, मैंने जब से सुबह सुबह वावेला खाना शुरू किया, मेरा तो वावेला ही नहीं रोक रहा। ऐसे हशाश बशाश वावेला है मेरा। अच्छा, तो बात ये मैं करने लगा था कि हम बड़ी दफा कल्पे हैं और कल्पते रहे हैं कि स्कूल में बच्चों को नर्सरी से ही ट्रैफिक के कानून सिखाए जाएं, इसको सब्जेक्ट के तौर पे दूसरी चीजों को भी, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर किस तरह मूव करना चाहिए, बाथरूम पब्लिक जो होते हैं वो कैसे इस्तेमाल करने चाहिए, या अपना पब्लिक के जो होते हैं प्रेमिसेस, बिल्डिंगें, ये वो वहां पे अदबो आदाब जो हैं वो मलहूज़े खातिर रखने के लिए बच्चों को सिखाना चाहिए। अच्छी तजवीज़ है। आपका मुबारक हो पाजी, पंजाब गवर्नमेंट ने ट्रैफिक के हवाले से एक 0 पीरियड शुरू करने का ऐलान किया है कि असेंबली के बाद फौरन असेंबली में ही कुछ देर के लिए बच्चों को ट्रैफिक कानून सिखाए जाए। बहुत अच्छे। उसमें मेरी गुजारिश ये है अपना पंजाब गवर्नमेंट पायन को कि ये साथ जो दूसरी चीजें हम कल्पते रहते हैं इसको भी डालें, इसको भी सब्जेक्ट में डालना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कभी देखें ना जी, ये बड़े बड़े लोग असल में बड़ी बड़ी गड्डियों में और बड़े बड़े हुटरों में ही भज नस कर रहे होते हैं, इनको पब्लिक प्लेसेस का पता ही नहीं कि उधर सूरत हाल क्या है। और ऊपर से अफसरान इतने तेज होते हैं कि जिधर जिधर से इन्होंने गुजरना हो वो राह साफ कर देते हैं। और ये भी वो चीजें सारी देख के कि क्या बात है, बड़ा डिसिप्लिन है, खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता नहीं ना होता कि ये जो अफसर हैं वो सिर्फ इन्हीं को चमड़े होते हैं। वो जिस तरह आंब छीलने तो मक्खी नहीं मगर मगर चमड़ी रहती, जितना मर्जी से चपेड़े मारे वो फिर घूम करके उधर आ जाते। बिल्कुल इसी तरह के ये अफसर होते हैं।
हैं, ये खुशामदी जो होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बाकी चीजों को भी सब्जेक्ट का हिस्सा बनाना चाहिए हाँ जी। और इसके इम्तिहान में नंबर भी होने चाहिए ताकि बच्चे इसे शौक से सीखें। पावे 10 नंबर इनको दे, हाँ। जैसे एनसीसी के 20 नंबर होते थे, उस तरह इस तरह की चीजों के भी नंबर रखें ताकि वाकई बच्चे शौक से शऊर हासिल करें नंबर यादा करने के चाह में। हाँ जी। आज की क्या पहली खबर है? जी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, नाअहल अफसरान की मेरी टीम में कोई जगह नहीं है। गुड। काम करें वरना घर जाएं, बातें नहीं अब एक्शन होगा। आहा, वैसे मुराद अली शाह साहब हजूर आप भी कोई बातें छोड़े, अब हम काम शुरू कर भी देना। अब 6 महीने हो गए हैं आपको आए हुए, अभी तक कराची में कूड़ा क्रिकेट उसी तरह क्रिकेट खेलता फिर रहा है। हाँ जी। उसको जनाब अब मेरा ख्याल है अगर ट्रकों से ना सही कई दापड़े से भी उठाना शुरू किया होता तो अब तक मुक गया होता। वो मैं किसी डायरेक्टर के इंतजार में जो एक्शन कहे। यार एक्शन कहने वाले तो खुद हैं, वो डायरेक्टर हैं वो सिंध के। सीएम जो होता है वो डायरेक्टर ऑफ सूबा होता है। सही। असल में उन्होंने जब आए थे उसी वक्त ही कह दिया था कि जितना कूड़ा है बहुत टाइम लगेगा उठाने में। मैं कहता हूँ ये ना हो कि हर साल यही कहते रहे बहुत टाइम लगेगा, बड़ा कूड़ा है। इसी तरह इनके 5 साल पूरे हो जाने, फिर और वजीर आला आ जाएगा, फिर ये घर बैठ के दूजे तीजे महीने कहना शुरू हो जाएंगे यार 3 महीने हो गए इसको आए हुए, ये कूड़ा ही नहीं ठा रहे। और जो नया वजीर आला होगा वो कहना शुरू हो जाएगा बहुत टाइम लगेगा, बहुत कूड़ा है। इसलिए मुराद अली शाह साहब खुदा के लिए उठवाएं कराची का कूड़ा, इससे पहले कि आपके नीचे से कोई खींच ले मूड़ा। मूड़ा किसको कहते हैं? यार वो जो कानियों का बना होता है गोल सा बैठने वाला। Oh, I saw somewhere. You mean a chair? हाँ जी, जब आप ऑक्सफोर्ड पढ़ते थे ना तो खोखे से जब आप आलूओं वाली टिक्कियां खाने जाते थे उधर वो जो मूड़े पड़े होते थे ना उसको कहते हैं। Oh, I got it. हाँ जी, अंग्रेजों से इसकी शक्ल क्या मिलती है, शोखा ही हो गया हुआ। हालांकि चंद शो पहले बता रहा था कि डीसी को हम लोग डीसीओ कहते हैं, और अब कैसी अंग्रेजी मार रहे हैं रफीको। यार ओ आलिया ने उकाड़ा मोहब्बत से कहते हैं। ओ मोहब्बत से कहते नहीं, मोहब्बत से उनकी ओर निकल जाती है रफीको। अगले तो भाव ना दी समझ ना आवे ओ समझ आई थी। हाँ जी। अच्छा जी, एक इस्राएली कंपनी का कहना है कि 3 साल बाद यानी 2020 में उड़ने वाली कार मार्केट में लाई जाएगी। बहुत शौक है ये देखो, ये शहबाज शरीफ के सारे पुल फ्लॉप करने लगे। जब हमने इतना पैसा लगा लिया, बल्कि सारा पैसा पुलों पे लगा लिया, अब उड़ने वाली कार बना रहे। तो पहले बना दो, साढ़े पुलों का खर्चा तो बचे। जहाँ पे जरूरत हो ट्रैफिक फंसे, जहाँ पुल की जरूरत है वहां से गड्डी चौक ले। बाकी बातें तो ठीक है, लेकिन ट्रैफिक वार्डन गाड़ी रोक के चालान कैसे करेंगे उड़ती गाड़ी का? यार अगर उड़ने वाली गाड़ी बन सकती है तो उड़ने वाले वार्डन नहीं बन सकते। हाँ जी, ऐसे वार्डन ऊपर जाके कहेगा ये गड्डी साइड से लाओ, इधर कर ले, इधर टाली ने कॉल कर, मैं टाली नीचे मड़ के चलान कर दे। वहां आ गई वहां आ गई हैं, खेती कट में थकन नहीं है, फटक कर जेबा फोलन नहीं, कापी तेरी थले डिग पई, चल थले ला गड्डी में आ रहे हैं। इस तरह चलान हुआ करें। अच्छा, दोनों बाजू से तो वो ऐसे कर रहा होगा, रोकेगा किस बाजू से? यार ये देखो ना, जिस बाजू से रोकना है उधर से ऐसे करता करता ऐसे कर ले। ये ना हो इधर वाली गड्डी वाला भी रोक जाए, पिछली गड्डी वाला भी रोक। वार्डन की वर्दी भी ग्रे होती है, उड़ता हुआ ग्रे पैरेड ही लगेगा। कहेगा चलान कटाइए, थोड़ी सी चूरी दे। अच्छा जी अजीज साहब, जरा खबर सुने। बरतानवी खवातीन शादी के लिए जनूबी एशिया, खास तौर पर पाकिस्तानी मर्दों को तरजीह देने लगी। बस बरतानवी खवातीन ने भी हस्बे हाल देख लिया होगा। इतने शौक होने की जरूरत नहीं, इस तरह के चिट्टे तो वहां पे लाखों रोल रहे हैं। ये गौरी की वजह से ये खबर आई है। अच्छा जी, कल्ली कल्ली जान दुख लखते करोड़ वे दूर जानवा। कितनी दूर है इंग्लैंड? सही कलप रहा है ना बेचारा, एक वो अपनी और तरफ से चमड़ जहाज में बैठ के है। हाँ जी। पूछ रहा है, कितनी दूर रह गए?
یار اتنا اچھلے نا خدا کے لیے. انہوں نے کو حسن کی وجہ سے یہ فیصلہ نہیں کیا. ان خواتین کی یہ ریسرچ ہے کہ پاکستان میں مرد حیرات پامیں 22 گریڈ کا ہو نا, وہ پہلے گریڈ والے جتنا ہی رن مرید ہوتا ہے. اس لیے ان کو یہ خطہ پسند آیا. یہ اچھے مرد بیچارے. اتنی خوبصورتی سے اس نے ہم سب کو ریجیکٹ کر دیا اور خود کو مضبوط امیدوار بنا لیا. واقعی ادھر کی خواتین ہوتی ہیں نازک مزاج سے, وہ تو بچے اس لیے نہیں جامتی بیچاری کہ اٹھانا پڑے گا. اور اگر ان کو بچے اٹھانے والا بندہ دستیاب ہو جائے تو وہ تو جمن گیا 19 بچے. اور پاکستانی مرد آپ کو پتا ہے 2 ایس موڈے تھے, 2 ایس موڈے تھے, 2 ایس کو چھڑچ, 2 ایس کو چھڑچ, 3-4 مگر لائے ہوندے نے, وہ تو بادشاہ ہیں. اچھا جی, بھارت کے نئے آرمی چیف کا کہنا ہے کہ سرجیکل سٹرائک ضروری پیغام تھا, پاکستان پر مزید حملے خارج از امکان نہیں ہے. بہت اچھے, یعنی کہ کیسے شو ہیں یہ بھارتی آرمی چیف صاحب. اپنی بندے ان کے 36 یہ بتا چکے ہیں کہ سارا ڈرامہ تھا یہ سرجیکل سٹرائک, اور آج اتنے مہینوں کے بعد پھر اس کو ہوش آ گیا ہے سرجیکل سٹرائک ایک پیغام تھا. یہ رے دوبارہ بھی حملہ ہو سکتا ہے. جنرل بپن راوت صاحب ابھی نئے آئے, یہ فوٹو تو دکھاؤ ان کی. دیکھ لو تم نے ہار ڈالنے, یہ لو. وارے واہ, اس طرح کا بندہ اگر امان سے محلے میں دکان کھول لینا کریانے کی تو بچوں کے والدین کہتے ہیں کہ پتروں دی دکان تے نہ جانا, بندہ نہیں ٹھیک. اور اگر کہیں چھوٹا موٹا ہوٹل کھول لے تو 2-3 مہینے میں ہی پتہ چل جاتا ہے گوئے دے کولوں ناشتہ نہ کریا کرو, بطخاں دے آنڈیاں دا آملیٹ بناتا ہے. عزیزی یہ انڈین آرمی کا چیف ہے. جی جناب. ہمارے تو ریسکیو والے اس سے خوبصورت ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ دیکھو تو صحیح, اس کا باقاعدہ فوجیوں نے منہ باندھا ہوا ہے کہ چیف صاحب دے منہ کو غلط گالی نکل لی ہے, اس واسطے بند چھڈو منہ انہوں. اور بیچارے کا منہ غور سے دیکھو, جب بند دیا نا فوجیوں نے تو اس نے چٹ پہ لکھ کے بتایا کہ میرے منہ چپانے کھولو میں ہوتے تھوک لما. عزیزی یہ سفید سفید اس کی بوچھیں, اور تیرا کی خیال ہے انہیں لسی بھی تھی. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.